Ideals are very much there that environment is something that needs to be protected for generations, and so there should be everything that you do should be done in accordance with those principles. But the experience that you have in terms of what the government could do, what the court could do, if you follow those principles to its logical end, that can be very different. Recently, you may have seen in the news that there was a conclave in Bhubaneswar regarding Make in Odisha. So, different organizations were invited to participate in that meeting, and they were told what advantages they would have if they invest in Odisha. So there were similar conclaves in various other states. There was a conclave in Bangalore regarding investment, global investment summit in Bangalore. And people who have studied EVS in their schools thought that it would be a very good opportunity to follow those principles that they learned in school to their logical end. That is, show some demonstration, some posters to the potential investors saying that okay, if you please, you are very much welcome to invest in Karnataka and do those things, but please keep in mind that livelihoods should not be impacted adversely. Nature, if impact on nature should not be adverse. Everything should be sustainable, and human rights should be respected. And this is something that they were planning, and even that planning was something that the government didn't like. So some of these people were picked up by police, their phones were confiscated, and then eventually they received those phones back. But then these people were just doing what they thought would be the right thing to do, without any ill feeling for anyone. But this is something that one cannot take for granted, that the government would do whatever is logically consistent with those lofty principles. Likewise, we have ideas about judiciary, what the judiciary would behave, how the judiciary will behave. We have seen headlines where the judiciary have come in the aid of environment, in the end of people who are oppressed and all that. But there are stark, very, very stark counter examples. And these are the things that complete the picture for us. I will not waste your time by giving you hints, because we will get much more than hints through a conversation with Himanshu Kumar. He has been in the process for a very, very long time, several decades, and at the receiving end of the very surprising judgments from courts, and of course surprising actions from the government. And these will probably enrich our knowledge about, this empirical knowledge about what the governments are, what the courts are for. So, for a more complete picture, let us listen to Himanshu Kumar. Thank you, sir. Like every other Research Scholars Forum program, so we have a donation box outside our hall. So this donation box helps us in organizing events like this. So keep that in mind. Anyway, so proceeding with this program, our next, I'd like to call upon the stage our very own Professor Paramita Das. So she will be singing a song. I thank RS Forum and in particular Shomu for giving me this opportunity to be here today. So this is not really connected maybe, but so little over a year ago, as you all know, Stan Swamy died in custody. So that was in July 2021, and he was also a big champion of tribal rights, and he worked for more than 50 years. And so there is this 84-year-old man who is suffering from Parkinson and trembling
but somehow the Indian state is trembling in front of this old man, and so much so that it even denies even some basic things like a slipper and straw. So this incident really perturbed us, and my colleague Mrinal composed a song, and I gave tune to it. So this tune is not really mine, but it is some traditional tune. So this is our composition, and I would like to sing this song. I'm sorry. Yeah, I'm sorry. This is in Bengali, sir. And I hope majority of you understand Bengali. So. আজকে খানিক রেগেই আছো, কাল ঠিক যাবে ভুলে, বুড়ো যাজকের মতো আরো কেউ আবার মরবে জেলে। আজকে খানিক মুখর হয়েছো, নির্বাক হবে কালকে, সেই নীরবতা শক্তি যোগাবে ভয়ানক কোনো শাসকের। বৃদ্ধ মানুষ কাঁপা কাঁপা হাত, তার ভয় কাঁপে কোন জন, মরণের গান ঢিমে তালে বাঁধা শোনাবার মহা আয়োজন। সে গানের সুরে ধ্বংসধ্বনি বিস্তার তার বহুদূর, কান দিয়া তাহা মরমে কষিল প্রতিবাদী বুক দুরুদূর। মরেননি তিনি গায়ে ও গঞ্জে, ছড়িয়ে থাকবে তার কাজ, ভয় পেয়ে গিয়ে চুপ করে গিয়ে মরেছ আসলে তুমি আজ, ওগো মরেছ আসলে তুমি আজ। থ্যাংক ইউ। Thank you, Paramita ji. Proceeding with our program, I would like to call upon stage Sujoy, Rahul and Shomo to perform another song. Who are still in joining us via Zoom or YouTube. So we are not able to have a live streaming with video, but we are having an offline video recording facility. So we are using that. So you can watch the program later, and you can share it via and view it in our YouTube channel. So Indian Statistical Institute Research Scholars. So that is our YouTube account. So you can search us, and through our email you can search us and watch the program later in our YouTube channel. Thank you. আচ্ছা, গানটার প্রেক্ষাপটটা একটু বলে রাখছি, বাংলাতেই বলছি। সেটা হলো যে এই গানটা বাংলাদেশের এক জায়গায় আদিবাসী মানুষদেরকে প্রায় 500 বর্গ কিলোমিটার একটা শালবন ছিল, সেখান থেকে 2004 সালে উচ্ছেদ করে ওখানে ইকো পার্ক তৈরি করার একটা প্রজেক্ট নেয় সরকার এবং বিশ্বের আরো নানা বাণিজ্যিক সংস্থা। তার বিরুদ্ধে ওখানকার যারা আদিবাসী বলবো না, যারা ওখানকার মানে বন জঙ্গল যাদের বাসভূমি এবং যারা ওখানে বনের ওপর নির্ভর করে জীবনযাপন করতেন যে মানুষরা, তারা রুখে দাঁড়ান। সেই লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ যায় পীরেন স্নাল বলে একজনের। তো পীরেন স্নালকে নিয়েই গানটা, সেটা আমরা গাইব। পাখির স্বভাব পাখির মতো উড়বে বলে, কোন পাহাড়ে উড়ে উড়ে গাইবে বলে, লাল সে মাটির গন্ধ বুকে পুষবে বলে,
সবুজ মায়ার বাঁধন অটুট রাখবে বলে শাল বৃক্ষের মতো সিনা টান করে সে, শাল বৃক্ষের মতো সিনা টান করে সে মানুষ হয়ে বাঁচতে বীরের জান দিয়েছে। শাল বৃক্ষের মতো সিনা টান করে সে মানুষ হয়ে বাঁচতে বীরের জান দিয়েছে। এই বন যে আমার মা গো, আমি তারই ছেলে, অবাক চলন বলন আমার তারই কোলে। এই বন যত দূর ঠিক তত দূর আমার বাড়ি, এই মাটিতে পোতায় আছে আমার নারী। সেই নারী ধরে কারা যেন টান দিয়েছে, সেই নারী ধরে কারা যেন টান দিয়েছে, তাই রুখতে বীরেন স্নাল জান দিয়েছে। সেই নারী ধরে কারা যেন টান দিয়েছে, তাই রুখতে বীরেন স্নাল জান দিয়েছে। তারা উন্নয়নের নামে দেখো দেয়াল তোলে, তার কাটাতে ভিন্ন করে মার ছেলে। এতদিনের জীবন বোধে হানলো কারা, মায়ের ছেলে হস্য ধীরে রুখে দাঁড়া। সেই প্রাণের ডাকে প্রাণ মেলাতে ছুটে গেছে, সেই প্রাণের ডাকে প্রাণ মেলাতে ছুটে গেছে। দামাল ছেলের রক্তে মায়ের বুক ভেসেছে, সেই প্রাণের ডাকে প্রাণ মেলাতে ছুটে গেছে। দামাল ছেলের রক্তে মায়ের বুক ভেসেছে। পাখির স্বভাব পাখির মতো উড়বে বলে, কোন পাহাড়ে উড়ে উড়ে গাইবে বলে, লাল সে মাটির গন্ধ বুকে পুষবে বলে, সবুজ মায়ার বাঁধন অটুট রাখবে বলে। শাল বৃক্ষের মতো সিনা টান করেছে, শাল বৃক্ষের মতো সিনা টান করেছে মানুষ হয়ে বাঁচতে বীরেন জান দিয়েছে, মানুষ হয়ে বাঁচতে বীরেন জান দিয়েছে, মানুষ হয়ে বাঁচতে বীরেন জান দিয়েছে। After delay, we'll go to our speaker and hear from him. So to introduce our speaker, Mr. Himanshu Kumar is a prominent Gandhian activist, best known for his activism for the tribal communities of Chhattisgarh. In 1992, he founded the Vanvasi Chetna Ashram in Dantewada to educate the tribals about their rights. In 2003, Kumar was appointed as a member of the Dantewada unit of the National Legal Services Authority, or NALSA, a Government of India organization. Starting in 2005, during the murderous Salvajurum campaigns of vigilante groups against the Adivasis of Bastar in Chhattisgarh, Kumar worked to try to get villagers back to their homes, get people falsely accused out of jail, and win justice for the victims of police and vigilante crimes. Kumar filed a PIL in 2011 with the Supreme Court of India to investigate the alleged killing of 17 tribals from the Dantewada district, now Sukma district, by Chhattisgarh police as a part of the Operation Green Hunt in September and October of 2009. Kumar moved to the Supreme Court with a list of 519 fake encounters cases. His ashram was eventually bulldozed and he was forced to move to Delhi, where he continues to try to follow up with the legal cases on the state's treatment of the Adivasis. And in 2022 July, so Supreme Court rejected the PIL issued by Kumar and asked him, fined him with rupees 5 lakhs, which he refuses to pay, I guess. Yeah. So according to Kumar, the system atrocities of the Adivasis are intrinsically connected to the plunder of Jal Jangal Zameen. So without going any further, I would like to call Mr. Himanshu Kumar on stage and tell us a bit more about the movement and his personal life.
बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु कुमार है और मैं दंतेवाड़ा से आया हूं। जो विषय है मनुष्य और पर्यावरण को बचाने का, हमें ऐसा लगता है, अभी प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे कि हम सब पर्यावरण को प्यार करते हैं, फूलों को प्यार करते हैं, पेड़ों को प्यार करते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्यार करने का मामला नहीं है। क्या कोई ऐसा जीवन संभव है कि आप प्यार ना भी करें? ये आपकी कोई उदारता नहीं है, जेनरोसिटी नहीं है कि आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे इंसान हैं, इसलिए आप पेड़ों को प्यार करते हैं। मैं आपसे एक ऐसे जीवन की कल्पना करने को पूछता हूं कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो आप होंगे क्या? अगर पेड़ खत्म हो जाएंगे तो आप जिंदा रह सकते हैं क्या? जैसे ही पेड़ खत्म होंगे आप भी पट से गिर के मर जाएंगे। पेड़ों का होना आपके होने की अनिवार्य शर्त है। आप नेचर को प्यार नहीं करते, आप ही नेचर हैं। यू आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेचर। सो इट्स नॉट सेविंग नेचर, इट्स सेविंग यू। हम प्रकृति को, पर्यावरण को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम आपको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नेचर है तो आप हैं। आपका एग्जिस्टेंस नेचर के एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य गलती करता है, वो समझता है नेचर अलग है, मैं अलग हूं। एक बार जिम कॉर्बेट पार्क में एक खास तरह की चिड़िया की एक स्पेशीज गायब हो गई। तो खोज हुई कि कैसे गायब हुई, ये चिड़िया कैसे गायब हो गई। तो पता चला कि वो चिड़िया हाथी की लीद में पलने वाले एक कीड़े को खाती थी। हाथी कम हुए तो हाथी की लीद में जो वो कीड़ा पैदा होता है, वो कीड़े कम हुए तो चिड़िया की खुराक खत्म हो गई, तो चिड़िया खत्म हो गई। पता नहीं नेचर में कौन सी चीज खत्म हो और इंसान भी खत्म हो जाए। तो नेचर का जो पूरा एक सिस्टम है, उसको डिस्टर्ब करना, उसको खत्म करना, उसको नुकसान पहुंचाना, ये हम लोगों के लिए सुसाइडल हो सकता है। पता नहीं कौन सी चीज का खत्म होते ही इंसान खट से खत्म हो जाए। हम कोई बहुत ओमनीपोटेंट और बहुत कोई ताकतवर स्पेशीज नहीं है कि हम बचे रहेंगे। पता नहीं क्या खत्म होते ही हम खत्म हो जाएं। इसलिए जो लोग पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं, वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या कोई फैनेटिक्स और सनकी लोग की इनको तो बस पर्यावरण की पड़ी रहती है, ये तो विकास विरोधी लोग हैं, ये तो एंटी नेशन और नक्सलाइट और इस टाइप कम्युनिस्ट लोग हैं, ये लोग तो ऐसी बातें करते रहते हैं। ये हमारे अस्तित्व की बातें हैं, हमारे एग्जिस्टेंस की बातें हैं। मैं स्कूल कॉलेजेस में जाता हूं, बच्चों के बीच बात करता हूं और बच्चों से पूछता हूं कि बच्चों, हमारा जो ये समाज है, इस समाज में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो बहुत मेहनत करते हैं, किसान, मजदूर, दस्तकार। दूसरी तरफ वो हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं, अफसर, सेठ, नेता। कौन ज्यादा पैसे वाला है? जो ज्यादा मेहनत करता है वो ज्यादा पैसे वाला है,
या जो कम मेहनत करता है वो ज्यादा पैसे वाला है? तो बच्चे कहते हैं कि जो कम मेहनत करता है वो ज्यादा पैसे वाला है, और जो ज्यादा मेहनत करता है वो गरीब है। मैं बच्चों से पूछता हूं, ये न्याय है या अन्याय है? तो बच्चे कहते हैं कि अन्याय है। फिर मैं पूछता हूं, अच्छा हम सब लोग गंदगी करते हैं समाज में, और एक खास जात के लोग हैं जो उसे साफ करते हैं। गंदगी करना ज्यादा अच्छी बात है या सफाई करना? तो बच्चे कहते हैं सफाई करना। मैं कहता हूं कि ज्यादा इज्जत किसको मिलनी चाहिए, गंदगी करने वालों को या सफाई करने वालों को? तो बच्चे कहते हैं सफाई करने वालों को। मैं पूछता हूं उनको ज्यादा इज्जत मिलती है क्या? वो कहते हैं नहीं मिलती। मैं बच्चों से पूछता हूं ये न्याय है या अन्याय है? बच्चे कहते हैं अन्याय है। तो मैं पूछता हूं अच्छा अब ये बताओ ये अन्याय कर कौन रहा है? तो बच्चे थोड़ा सोचते हैं, फिर कहते हैं हम सब कर रहे हैं। फिर मैं बच्चों से पूछता हूं इस अन्याय को कौन मिटाएगा? तो बच्चे कहते हैं कि हम मिटाएंगे। मैं बच्चों से अगला सवाल पूछता हूं, दुनिया का सबसे महान देश कौन सा है? तो बच्चे कहते हैं भारत। और फिर मैं कहता हूं कि सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? तो चूंकि ज्यादातर मैं नॉर्थ एरिया में घूमता हूं जो हिंदू बहुल एरिया है, तो बच्चे कहते हैं हिंदू धर्म सबसे महान है। फिर मैं पूछता हूं कि अच्छा भाषा सबसे अच्छी कौन सी है? तो हिंदी, संस्कृत, चिल्लाते हैं बच्चे। फिर मैं कोई पूछता हूं कि अच्छा सबसे खराब देश कौन सा है दुनिया का? तो बच्चे एकदम कूद के कहते हैं पाकिस्तान। फिर मैं पूछता हूं अच्छा सबसे खराब धर्म कौन सा है? मुसलमान। खराब भाषा कौन सी? उर्दू। ठीक है, यही सीखा है उन्होंने। फिर मैं पूछता हूं कि अच्छा ये बताओ, जन्म लेने से पहले तुमसे पूछा गया था कि तुमको कहां जन्म लेना है? भारत में, हिंदू घर में, हिंदी बोलने वाले घर में? तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, कहते नहीं। तो मैंने कहा इसका मतलब है भारत में, हिंदू घर में, हिंदी बोलने वाले घर में तुम्हारा जन्म बाई चांस हो गया, इत्तेफाक से हो गया। बच्चे कहते हैं हाँ। मैं पूछता हूं कि अच्छा मान लो बाई चांस तुम्हारा जन्म पाकिस्तान में हो जाता, एक मुसलमान घर में, उर्दू बोलने वाले घर में, और वहां मैं तुम्हारे स्कूल में आता और मैं तुमसे पूछता कि सबसे अच्छा देश कौन सा है, तो तुम क्या जवाब देते? आप बच्चे शर्माने लगते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ हम पाकिस्तान को सबसे अच्छा कहते हैं। और मैंने कहा कौन से धर्म को अच्छा बताते? मुसलमान को। भाषा कौन सी अच्छी बताते? उर्दू को। तो मैंने कहा फिर बताओ ना कौन सा देश सबसे अच्छा है? फिर बच्चे सिर खुजाने लगते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब यह है कि जहां हम पैदा होते हैं उसको सबसे अच्छा समझते हैं, वो अच्छा है या नहीं इसकी जांच नहीं करते। अभी मैंने आपसे पूछा कि हमारे देश में न्याय है या अन्याय है, और आपने देखा कि हमारा देश की बुनियाद में अन्याय है। यहां मेहनत करने वाले गरीब हैं, न सिर्फ गरीब हैं बल्कि और जो सफाई करने वाले हैं उनको नीची जात का समझा जाता है, बल्कि जितने भी मेहनतकश लोग हैं उन सबको हमने नीचा घोषित किया है समाज में, सामाजिक तौर पर, सोशली। भारत का समाज अन्याय पर टिका हुआ है और इसे आप कह रहे हैं कि ये सबसे महान है। और मैंने आपसे पूछा कि इसे कौन बदलेगा, तो आप कह रहे हैं कि हम बदलेंगे। आप क्यों बदलेंगे जब आप कह रहे हैं कि सबसे महान है हम? जो महान है उसको तो बदलने की जरूरत ही नहीं है। बदलने की जरूरत तो उसे है जो खराब है, और खराब कौन है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बदल ले अपने को, हमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है।
यही है पॉलिटिक्स ऑफ प्राइड की कॉन्स्पिरेसी, गर्व की राजनीति का षड्यंत्र। आप चेंज के बारे में ना सोचें, आपको समाज का अन्याय के बारे में आप खोजबीन ना करें, आप छानबीन ना करें, मेरे चारों तरफ क्या इनजस्टिस है आप उसको देख ना सकें, क्योंकि आप देखेंगे तो आप चेंज करना चाहेंगे, आप न देख सके इसलिए आपकी आंखों पर, आपकी नसों में गर्व का इंजेक्शन डाल दिया जाता है, गर्व का चश्मा चढ़ा दिया जाता है आपकी आंखों पर। गर्व करो, अपनी संस्कृति पर गर्व करो, अपने धर्म पर गर्व करो, अपनी भाषा पर गर्व करो, हर चीज पर गर्व करो। इसकी कमियां मत ढूंढो, क्योंकि कमियां ढूंढोगे तो बदलाव लाओगे, और बदलाव कौन रोकना चाहता है? जिसे इस स्टेटस को में फायदा है, जो कम मेहनत करता है और मजे में है, जो जाति के कारण ऊंचे स्थान पर बैठा है, वो नहीं चाहता कि ये स्थिति बदले, नौजवान इसको बदले। इसलिए पॉलिटिक्स ऑफ प्राइड लाई जाती है, आपके दिमाग में गर्व भरा जाता है। तो ये खैर मैं बच्चों के साथ बात करता हूं, उसका मैंने थोड़ा सा आपको बताया। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, मुजफ्फरनगर में, और मेरे पिताजी प्रकाश भाई वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। उन्होंने जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तो उस समय बहुत सारे लोगों ने सैबोटेज करना शुरू किया इंग्लिश सिस्टम को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को। कोई रेल की पटरी उखाड़ने लगा, कोई बिजली के खंभे तोड़ने लगा। तो हमारे पिताजी तब यंग थे, तो उन्होंने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन को आग लगा दी और फिर वो फरार हो गए। फिर अंडरग्राउंड हो गए, पुलिस ने पीछा किया तो, और अपने अंडरग्राउंड पीरियड में उन्होंने गांधी जी को खत लिखे। गांधी जी ने हमारे पिताजी को अपने सेवाग्राम आश्रम में बुला दिया और पिताजी फिर सेवाग्राम में रहे। फिर विनोबा भावे का भूदान आंदोलन शुरू हुआ, पिताजी उसमें शामिल हुए। और यूपी में फिर जो सीलिंग की ज़मीन जमा हो गई गवर्नमेंट के पास, उस ज़मीन को बांटने के लिए वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने विनोबा भावे से कहा कि हमारे पास पॉलिटिक्स में कोई ईमानदार आदमी नहीं है, आप कोई हमें आदमी दीजिए। तो विनोबा भावे ने हमारे पिताजी को दिया, और पिताजी को उस वक्त यूपी गवर्नमेंट ने फिर कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया, और पिताजी ने 20 लाख गवर्नमेंट लैंडलेस लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की, और पिताजी खुद लैंडलेस रहे। हमारे पिताजी की 2017 में जब डेथ हुई तो उनके पास कोई ज़मीन नहीं, अपना कोई मकान नहीं, ज़ीरो बैंक बैलेंस, और उन्होंने कहा मेरी डेड बॉडी पर एक भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, कोई रिचुअल नहीं होना चाहिए। तो उनकी डेथ के 2 घंटे के अंदर हम उनकी डेड बॉडी मेडिकल कॉलेज में ले गए। उनकी दोनों आंखें 2 ब्लाइंड लोगों को 24 घंटे के अंदर मिल गई, और उनकी डेड बॉडी स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट के लिए दे दी गई। कोई पंडित नहीं आया, कोई मंत्र नहीं, कोई गरुड़ पुराण नहीं, कोई उनकी आत्मा की शांति का कुछ नहीं हुआ, और आज तक उनकी आत्मा ने हमें कोई कष्ट भी नहीं दिया, क्योंकि आत्मा जैसी चीज को तो हम मानते नहीं है। तो पिताजी की जैसी जिंदगी रही वैसी उनकी डेथ रही। पिताजी कहते थे कि गांधी जी कहते थे कि नौजवानों को गांव में जाना चाहिए और गांव में काम करना चाहिए। तो मैं और मेरी पत्नी अपनी शादी के 20 दिन बाद दिल्ली छोड़कर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जाकर अंदर एक गांव में एक पेड़ के नीचे हमने रहना शुरू किया 1992 में।
और हमने वहाँ आदिवासियों के साथ रहना, उनके बच्चों के साथ खेलना कूदना, फिर आदिवासी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें हैं वो समझना शुरू किया। जो नॉन फंक्शनल सिस्टम है उसको देखा, लोगों को उनके एंटाइटलमेंट्स बताए कि आपको राशन शॉप में राशन मिलना चाहिए, आंगनबाड़ी में सप्लीमेंट्री फूड मिलना चाहिए, आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, और उसके अराउंड लोगों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, उनको लेकर के गवर्नमेंट के पास जाना शुरू किया और चीज़ों को फंक्शनल बनाना की कोशिश शुरू की। तो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स बहुत खुश हुए कि भाई दिल्ली से कोई कपल आकर इस इतना रिमोट जंगल में रह रहे हैं, जंगल में झोपड़ी बनाकर। बस्तर को पनिशमेंट पोस्टिंग समझी जाती थी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए कि किसी को पनिश करना हो तो बस्तर भेज दो। तो यहाँ दिल्ली से कोई वॉलंटरीली आकर के एक कपल रह रहा है, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अपनी कमेटीज़ में हमें मेंबर बनाना शुरू किया। मुझे लोक अदालत का मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिया, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, कंज्यूमर फोरम का मजिस्ट्रेट बना दिया। हम डायस पर बैठ कर के केसेस सुनते थे समझौते के, और जैसा बताया नालसा के हम लोग मेंबर हो गए, नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी। वो सुप्रीम कोर्ट का है, गवर्नमेंट का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है। डिस्ट्रिक्ट जज हमारे पास आते थे, हम उनके साथ गांव में कैंप्स लगाते थे, लीगल कैंप्स। और हमारे एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ 1000 हो गई। हमारा काम 4 जिलों में फैल गया, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो गया, बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत मोटरसाइकिल्स, बस वगैरह, बहुत लंबा चौड़ा हो गया, फंड्स बहुत आने लगे, और ये सब चल रहा था। फिर कहानी ने एक टर्न लिया। जब ये सब चल रहा था उसी वक्त एक और पैरेलल प्रोसेस चल रहा था पूरी दुनिया में, भारत में भी वो आ रहा था, और वो था LPG का प्रोसेस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इसमें क्या हो रहा था, इसमें अमीर देशों की जो कैपिटल है, पूंजी है, वो गरीब देशों की तरफ दौड़ रही थी, और वो दौड़ रही थी नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए। वो लैटिन अमेरिकी देशों में जा रही थी, वो अफ्रीका की तरफ जा रही थी, साउथ एशिया में आ रही थी, और इंडिया में वो आ रही थी आदिवासी इलाकों में, खास तौर से सेंट्रल इंडिया में, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, झारखंड। और सरकार कहती है कि हम नक्सलाइट को इसलिए मारते हैं क्योंकि ये लोग भारत के संविधान को नहीं मानते। तो हम सरकार से पूछते हैं, आप मानते हो संविधान को? संविधान तो ये कहता है कि आदिवासियों के इलाके में, खास तौर से जहां 5वीं अनुसूची लागू है, आदिवासियों की ग्राम सभा की कंसेंट के बिना सरकार 1 इंच जमीन नहीं ले सकती। लेकिन सरकार ने क्या किया, 100 कंपनीज के साथ वहां MOUs किए, और आप जानते हैं कि एक बार किसी कंपनी के साथ MOU हो जाता है और वो कंपनी अपने शेयर्स इशू कर देती है, और आजकल जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है वो चूंकि ऑनलाइन है, एंड यू कैन नेवर नो कि उसमें किस देश का कैपिटल कितना लगा हुआ है, क्योंकि वो इतने वाया मीडिया से होकर के आती है कैपिटल, कि जैसे एक कंपनी में 4 कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाएंगे, उन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में किसने इन्वेस्ट किया है वो पता चला, वो 2 इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्ट किया, वो 2 इंस्टीट्यूशंस में किसने इन्वेस्ट किया है, तो आप ट्रेक करते करते वहां पता नहीं लगा पाएंगे, और पता नहीं चलता है कि कौन सी कंपनी में कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, कितना इंडियन है। जैसे एक खबर आई कि टाटा ने पोर्से कंपनी का अधिग्रहण कर लिया, हुआ उल्टा था। पोर्से बहुत बड़ी थी, टाटा स्टील छोटी थी।
तो पोर्से ने टाटा स्टील का अधिग्रहण कर लिया और नाम है टाटा का, लेकिन वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें जर्मनी के लोग ज्यादा हैं, वहां के इन्वेस्टर्स हैं और वहां के बोर्ड ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, तो वो लोग, और प्रॉफिट भी सारा वहां जा रहा है। तो इंडिया में जब जमीन एक्वायर की जाती है तो टाटा स्टील्स के नाम से की जाती है, लेकिन वो प्रॉफिट जा रहा है जर्मनी को। तो इस तरीके से ये जो कैपिटल है ये, अच्छा, फिर जो इंटरनेशनल कैपिटल का पूरा स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि 100% जो कैपिटल है दुनिया की, उस पर 1% लोगों का कब्जा है, 1% कैपिटलिस्ट का। अमेरिका में जब ये ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट चला था तब उनका एक स्लोगन था 99% वर्सेस 1%। तो ये जो 1% लोग हैं ये इतने पावरफुल हैं कि दुनिया की वॉर्स ये डिसाइड करते हैं, दुनिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज ये डिसाइड करते हैं, कहां वॉर होगी, कहां पर आर्मीज मूव करेंगी, कौन से इलाके पर कब्जा होगा, तेल के इलाकों पर कब्जा करना है, मिनरल्स पर कब्जा करना है, ये कैपिटलिस्ट डिसाइड करता है, ना कि उस देश की गवर्नमेंट। तो ये जब 100 कंपनीज के साथ एमओयूज हो गए, उसके बाद फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका लॉ, ये बहुत छोटी चीज हो जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि भाई 5th शेड्यूल एरिया में आप आदिवासी की मर्जी के बिना जमीन नहीं ले सकते, लेकिन सरकार ने क्या किया, जैसा अभी बता रहे थे आप, विजिलेंटी प्रोग्राम शुरू हुआ जिसका नाम था सलवा जुड़ुम। उसमें 5000 गुंडों को राइफलें दी गई, उन्हें कहा गया कि आप लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, आपको 1500 ऑनरेडियम मिलेगा और आपका काम है कि ये गांव के लोगों को गांव से खाली करो गांव, और उन लोगों को के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को जोड़ा गया। इन लोगों ने गांव पर अटैक्स शुरू किए, अटैक्स होते थे तो गांव के लोग भागते थे जान बचाने के लिए, भागते हुए लोगों पर गोली चलाई जाती थी, जवान लोग भाग सकते थे, बूढ़े, बच्चे, औरतें नहीं भाग पाती थी, बुजुर्गों और बच्चों का कत्ल किया गया, महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर बलात्कार हुए। और ये एलिगेशन मेरा नहीं है, मैं तो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कुछ भी कह सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इंटरनेट पर सर्च कर लें, एनएचआरसी की रिपोर्ट है, उसमें यह कहा गया है कि 16 आदिवासी महिलाओं के पास प्राइमा फेसी एविडेंस मौजूद है कि उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाहियों ने रेप किया है, और बड़े पैमाने पर रेप हुए हजारों महिलाओं के साथ। उनके ग्रेनरीज जला दी गई, उनके जो कोठार थे जिसमें महुआ, धान, दूसरी चीजें रखते हैं, उनकी क्रॉप्स जला दी गई, उनके वाटर सोर्सेज में जहर डाल दिया गया, पॉइजन कर दिया गया, और वो लोग जंगल में भाग जाते थे, फोर्सेस फिर आ जाती थी, फिर दोबारा वो लोग ट्राई करते थे किसी तरीके से अपनी जिंदगी शुरू करें, फिर फोर्सेस अटैक करती थी, और ऐसे 20-20 बार एक एक गांव पर हमले हुए और 650 गांव जला दिए गए। 650 घर नहीं, 650 गांव, और इन लोगों की सारी फूड सप्लाई बंद कर दी गई, फूड रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स थे वो सारे विड्रॉ कर लिए गए, राशन शॉप, आंगनबाड़ी, मिड डे मील सब विड्रॉ कर लिया गया, और इन लोगों का मार्केट जाना, मार्केट की जो एक्सेसिबिलिटी थी वो बंद कर दी गई, कॉर्डन कर दिया गया 1000 गांव को, ताकि ये लोग मार्केट से चावल न खरीद। ये सब हुआ। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में केस गया सलवा जुड़ुम के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल कहा और कहा कि जितने भी गांव डिस्प्लेस किए गए हैं वो दोबारा से रिहेबिलिटेट किए जाएं, जिन पुलिस ऑफिसर्स ने इसमें जो इन्वॉल्व थे उन सबके खिलाफ एफआईआर हो और आदिवासियों को कंपनसेशन दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने एक भी ऑर्डर का पालन नहीं किया। उसी दौरान मैंने जैसा अभी प्रोफेसर साहब ने बताया 519 केसेस
हमने कोर्ट को सौंपे, जिसमें से एक मामला जिसका भी 14 जुलाई को फैसला आया। सुकमा जिले के गोमपाड़ गांव में 16 आदिवासियों को सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और छत्तीसगढ़ पुलिस और ये एसपीओस जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स थे, इन लोगों ने मिल करके 16 आदिवासियों को मारा था, जिसमें 1.5 साल का बच्चा था जिसकी 3 फिंगर्स चॉप ऑफ कर दी थी। अब वो अपनी माँ के गोद में था, उसकी माँ के सिर में चाकू मार दिया। 8 साल की मौसी थी, उसकी गर्दन काट दी, उसकी नानी के ब्रेस्ट काट दिए, और ऐसे 16 लोगों को मारा था। तो वो लोग हमारे पास आए और हमने उनको दिल्ली लेकर आए, उनके फैमिली रिलेटिव्स मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, और फिर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उसमें प्रशांत भूषण, अरुंधति रॉय, ये सब लोग थे, नंदिनी सुद्दर वगैरह। फिर अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, केस चलता रहा, और 2010 में छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि हिमांशु कुमार नक्सल सिंपैथाइजर हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने डांटा छत्तीसगढ़ सरकार को कि स्टॉप क्रिएटिंग दिस बोगी ऑफ नक्सल सिंपैथाइजर्स, खबरदार अगर हिमांशु कुमार को नक्सल सिंपैथाइजर बोला तो। 2017 में फिर से छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि हिमांशु कुमार और सोनी सोरी दोनों फेक केसेस फाइल करते हैं, इन दोनों के ऊपर फाइन किया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात नहीं मानी। अब 2022 में फिर से सरकार ने ये कहा कि हिमांशु कुमार नक्सल सिंपैथाइजर है, और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स विल फैसला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप झूठा केस लाए हैं और आपका केस डिसमिस, आप 5 लाख फाइन दीजिए। तो हमने पूछा कि भाई हम तो आपके पास आए थे, आदिवासी आपके पास आए थे कि हमारे 16 लोगों का कत्ल हुआ है, आप उसकी जांच करा दीजिए। तो कोर्ट ने लिखा है कि पुलिस ने जांच की थी, पुलिस ने एफआईआर की थी, जांच की थी, चार्जशीट फाइल की थी। आपको पुलिस की जांच पर भरोसा करना चाहिए था, आपने कोर्ट में आकर कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है। तो हमने कहा भाई इस मामले में पुलिस तो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड अपने खिलाफ जांच कैसे करेगा? ये तो जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है उसके ही अगेंस्ट बात है कि एक्यूज्ड अपने खिलाफ जांच करेगा, पहली बात। दूसरी बात, हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जिस मामले में पुलिस एक्यूज्ड है उस मामले की जांच पुलिस नहीं कर सकती। तो आदिवासी आपके पास आए थे कि आप सीबीआई से जांच करा दीजिए या एसआईटी से करवा दीजिए, आपने जांच तो नहीं कराई, और जांच कराए बिना आपको कैसे पता कि ये केस झूठा है? आप जांच तो कराई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 में से 6 पेटिशनर्स ने दिल्ली की 30,000 कोर्ट में आकर ये बयान दर्ज कराया था कि किसने मारा हमें नहीं पता। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा था, लेकिन वो 6 पेटिशनर्स पुलिस ने किडनैप किए थे, और उनकी किडनैपिंग का वीडियो 3 जर्नलिस्ट ने शूट किया, और वो वीडियो सुप्रीम कोर्ट में हमने सीडी सबमिट की, और उन तीनों जर्नलिस्ट का एफिडेविट फाइल किया कि हमारे सामने पुलिस ने किडनैप किया है पेटिशनर्स को। अपनी कस्टडी में लाकर पुलिस ने यह बयान दिलवाया कि हम नहीं जानते किसने मारा। ठीक है, वो यही तो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता किसने मारा, वो ये तो नहीं कह रहे पुलिस ने नहीं मारा। तो आप जांच कराइए किसने मारा, आपने जांच नहीं कराई, और जांच कराए बिना आप कैसे कह सकते हैं कि ये आदिवासी झूठ बोल रहे हैं? और हमने कहा जुर्माना किस बात का? जुर्माना इसलिए कि हम कोर्ट क्यों आए? तो आप एक काम करिए, कोर्ट को ताला लगा दीजिए, कोई नहीं आएगा कोर्ट में। भाई कोर्ट तो लोगों ने अपने लिए बनाया है, ये तो जनता का कोर्ट है, जनता आएगी, इंसाफ मांगेगी। आप कोर्ट में आने पर फाइन लगा दोगे, तुम कोर्ट में क्यों आए, तुम्हारे ऊपर फाइन। हमने कहा महात्मा गांधी जब चंपारण गए तो उनको अंग्रेजी सरकार ने पकड़ के जेल में डाल दिया। अब वहां बवाल हो गया, हंगामा हो गया, तो सरकार ने कहा छोड़ दो छोड़ दो। तो कोर्ट में
गांधी जी को लाया गया, जज ने कहा ठीक है हम तुम्हें 100 रुपए के मुचलके पर छोड़ते हैं। गांधी जी ने कहा मैं 100 रुपए नहीं दूंगा। जज की बहुत बेइज्जती हो गई, बोला अच्छा तुम्हें बिना मुचलके के छोड़ा जाता है। तो हमने कहा हम तो गांधी जी को मानते हैं। मैंने कहा हम आपको 5 लाख नहीं देंगे जाइए। और मैंने कहा मेरे पिताजी के पास ना जमीन थी, ना मकान था, ना बैंक बैलेंस था, मैं तो उसी परंपरा का हूं। मेरे पास दुनिया में कोई जमीन नहीं है, कोई मकान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइन न दे तो आप उसकी जमीन और मकान कुर्क कर लेते हैं, मेरे पास तो है ही नहीं, क्या कुर्क करोगे? हाँ ये शरीर है, इसे आप जेल में डाल सकते हो, डाल दो, मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन आपका 5 लाख रुपया नहीं दूंगा। कान खोल के सुन लीजिए। 4 हफ्ते का टाइम था, 14 जुलाई को फैसला आया, 11 अगस्त को वो टाइम पूरा हो गया। कई बार मैं अपने साथियों को बोलता हूं कि हमें ऐसा लगता है कि जो फासिस्ट फोर्सेस हैं इनको हराया नहीं जा सकता, हराया जा सकता है, पीछे धकेला जा सकता है। एनआरसी सीए में हमने देखा एक गैर संवैधानिक कानून लाया गया, लोगों ने विरोध किया, इस डिकेड की सेंसस नहीं करा पाई है सरकार, पीछे धकेला। किसानों के खिलाफ बिल लाई, किसानों ने आंदोलन किया, माफी मांगनी पड़ी और बिल वापस लेने पड़े। हमारे वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दे दिया है मेरे खिलाफ एफआईआर करने का, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। सिर्फ 20 आदिवासी दिल्ली आए थे, वो बच्चा भी आया जिसका हाथ काटा था, बच्चा भी दिल्ली आ गया कि मेरा हाथ काटा था। आप कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं हम, ये देखिए मेरा हाथ। वो सब आ गए, वो औरतें आ गई जिनके पति को मारा गया था, माएँ आ गई जिनके बेटों को मारा गया। उन्होंने कहा हम झूठ बोल रहे हैं। और भारत के सुप्रीम कोर्ट पर दुनिया की नजर रहती है। और एक ऐसा मामला जिसमें 16 आदिवासियों पर मोस्ट ग्रूसम ब्रूटल अटैक हुआ हो, जिसमें बच्चों तक का हाथ काट दिया हो, औरतों के ब्रेस्ट काट दिए हो इंडियन स्टेट फोर्सेस द्वारा, और उस मामले में भारत का सुप्रीम कोर्ट कह दे पेटिशनर पर फाइन। दुनिया ने कहा हद ही हो गई यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो जब हमने फाइट बैक किया तो फिर अभी तक तो हम जेल गए फैसले के बाद भी, और बोल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो सवाल यह है कि इंसाफ के लिए खड़े होकर हिम्मत से खड़े होने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। लेकिन ये जो सब चल रहा है ये क्या है? ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की गलती है, या किसी लीडर की गलती है, या किसी कैपिटलिस्ट की गलती, या उसके लालच के लिए ये सब हो रहा है? थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं और मैं आपको 2 लोगों के कोट दूंगा, और दोनों लोगों को बहुत अपोजिट समझा जाता है, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि वो दोनों कितने सिमिलर थे। एक है भगत सिंह, एक है गांधी। दोनों के सिमिलर कोट है। भगत सिंह क्या कहते हैं? भगत सिंह को फांसी हो चुकी है, फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, और भगत सिंह एक लेटर लिखते हैं पंजाब के गवर्नर के नाम, और उस लेटर में वो कहते हैं कि एक युद्ध की स्थिति विद्यमान है और ये युद्ध जारी रहेगा। द स्टेट ऑफ वॉर एग्जिस्ट एंड शैल एग्जिस्ट। ये युद्ध जारी रहेगा। वो कहते हैं आपने सैन्य बलों का सहारा लेकर भारत की जनता के संसाधनों और श्रम को लूटने के लिए उसके ऊपर एक युद्ध थोपा है, और ये युद्ध अंग्रेजों के जाने के बाद भी, चाहे काले आ जाएं, जब तक संसाधनों की ये लूट और श्रम की लूट जारी रहेगी, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। जब तक कि जनता की निर्णायक जीत नहीं हो जाती, युद्ध जारी रहेगा। और गांधी क्या कह रहे हैं हिंद स्वराज में? गांधी कह रहे हैं अंग्रेजी विकास का मॉडल शैतानी मॉडल है। यह विकास का मॉडल कहता है जिसके पास ज्यादा है वो विकसित है। आपके पास ज्यादा पैसा है, आप विकसित हैं। आपके पास कम पैसा है, आप पिछड़े हुए हैं।
आपके पास बहुत सारे बंगले हैं, आप बहुत विकसित हैं, आपके पास एक कुटिया है, आप पिछड़े हुए हैं, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत विकसित हैं, आपके पास काम चलाऊ पैसा है, आप पिछड़े हुए हैं। गांधी ने कहा प्रकृति ने सबको बराबर दिया है, आपके पास दूसरे से ज्यादा तभी हो सकता है जब आप दूसरे के हिस्से का ले लें, और दूसरा देगा नहीं तो आप छीनेंगे, और छीन आप तभी सकते हैं जब आपके पास ताकत होगी। गांधी ने कहा इस विकास के मॉडल में सिर्फ ताकतवर का विकास होगा, कमजोर का विकास नहीं होगा, कमजोर पिछड़ जाएगा। गांधी ने कहा इस विकास के मॉडल को सस्टेन रखने के लिए अंग्रेज सारी दुनिया में युद्ध करते हैं। अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था अंग्रेजी राज में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन गांधी ने, एक जॉन मिल ने लिखा, अंग्रेज ने, यह भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता। अंग्रेज लगातार वॉर करते थे सारी दुनिया में। गांधी ने कहा अगर भारत अंग्रेजों का विकास का मॉडल अपनाएगा तो भारत किस पर हमला करेगा। गांधी ने कहा लिख कर रख लो, एक दिन तुम अपने गांव पर हमला करोगे, इस विकास के मॉडल से युद्ध निकलेगा और तुम तबाह हो जाओगे। भगत सिंह भी वॉर की बात कर रहे हैं, गांधी भी वॉर की बात कर रहे हैं। आज हमारे सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस कहां हैं? कहां हैं? आदिवासी इलाकों में। क्या कर रही है वहां? आदिवासियों को सुरक्षा देने गई है? नहीं, वो वहां गए हैं संसाधनों पर कब्जा करने। पूंजीपति को दो चीज चाहिए। पूंजीपति दो चीजों से बनता है, एक चीज नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरी चीज मजदूर का श्रम। अच्छा, भारत के संसाधन किसके हैं? सरकार कहती है हमारे हैं, झूठ। संसाधनों की मालिक सरकार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कम्युनिटी, समुदाय मालिक है, समाज मालिक है संसाधनों का। लेकिन होता क्या है, अगर किसी कैपिटलिस्ट को रिसोर्सेज पर कब्जा करना है तो सरकार नोटिफिकेशन निकालती है और कहती है कि इतने गांव इस कैपिटलिस्ट के लिए एक्वायर किए जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर जनता आराम से जमीन दे देती है? नहीं देती, विरोध करते हैं लोग। फिर क्या होता है? फिर कौन आता है? फिर पुलिस आती है। पुलिस क्या करती है? पुलिस जनता को पीटती है, लाठी चलाती है, जेल में डालती है, ज्यादा विरोध हो तो गोली चलाती है। पुलिस कौन है? पुलिस है सरकार की सेना। सरकार की सेना मतलब इंडियन आर्मी ही मत समझिए। जो भी सरकार की तरफ से गन लेकर आया है वो सरकार की सेना है। सरकार ने सेना का इस्तेमाल किया, और सेना का इस्तेमाल कहां होता है? युद्ध में। तो सरकार ने सेना का इस्तेमाल किया किसके लिए? संसाधन पर कब्जा करने के लिए। किसके खिलाफ सैनिकों का इस्तेमाल किया? जनता के खिलाफ। तो भारत की जनता के खिलाफ सरकार ने संसाधनों पर कब्जा करने के लिए एक युद्ध छेड़ा। फिर दूसरी चीज चाहिए श्रम। एक मजदूर 10,000 का प्रोडक्शन करता है दिन में, तो उसको 10,000 मजदूरी मिल जाएगी? 10,000 का प्रोडक्शन करता है, उसको मजदूरी 10,000 मिल जाएगी? उसको मिलेगी 200-300 रुपया। और अगर मजदूर कहे कि मेरी मजदूरी जस्टिफाइबल कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, नहीं तो मैं हड़ताल करूंगा, फिर कौन आता है? फिर वही पुलिस आती है और पीटती है कि इतने पर ही काम करना पड़ेगा। तो दोनों बार संसाधन पर कब्जा करने के लिए सरकार ने सेना का इस्तेमाल किया और श्रम को लूट के लिए सेना का इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली यही भगत सिंह कह रहे हैं, ये वॉर जारी रहेगी।
ये आपने वॉर शुरू की है जनता के खिलाफ और ये वॉर जारी रहेगी। ये वही वॉर है जो आदिवासी इलाकों में आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, नेकेड आईज। 2-2 किलोमीटर पर सीआरपीएफ का कैंप है। किस लिए है? दिस इज कॉल्ड हिडन वॉर ऑफ इंडिया, भारत का छिपा हुआ युद्ध। और मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है, और वो बुरी खबर ये है कि दिस वॉर इज एक्सपेंडिंग। ये युद्ध फैल रहा है, फैलेगा। दिस इज बाउंड टू एक्सपेंड। क्यों? कैपिटलिज्म का एक बीमारी है, और वो बीमारी है कि वो हमेशा क्राइसिस में रहता है, और वो क्राइसिस वो खुद क्रिएट करता है। क्राइसिस क्या है? कैपिटलिज्म को 2 चीज चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज और लेबर। नेचुरल रिसोर्सेज, चूंकि कैपिटलिज्म की ड्राइविंग फोर्स है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज को अंधाधुंध एक्सप्लॉइट करता है और ओवर एक्सप्लॉइट करता है, और उससे वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और दूसरा वो क्या करता है? दूसरा वो करता है मजदूर की मजदूरी घटाता जाता है, मजदूरों की संख्या घटाता जाता है, चीपर लेबर एरियाज में जाता जाता है। उससे क्या होता है? उससे समाज की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जब परचेजिंग पावर कम होती है तो उसकी सेल घट जाती है, और जब सेल घटती है तो प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो नेचुरल रिसोर्सेज भी खत्म हो जाते हैं उसके पास, और उसका माल बिकना ही बंद हो जाता है, और कैपिटलिज्म क्राइसिस में आ जाता है। तो बार बार बेल आउट पैकेज मांगते हैं, और सुधरता नहीं है कैपिटलिज्म कि हम सुधर जाएं, मजदूर की मजदूरी बढ़ा दें, सस्टेनेबल यूज करने लगे रिसोर्सेज का। नहीं, सुधरता नहीं है वो। उसका तो ड्राइविंग फोर्स ही प्रॉफिट है। वो फिर नए एरियाज को एक्सप्लॉइट करने निकल पड़ता है, वो एक्सपेंड करता है। अफगानिस्तान चलो, अब ईरान चलो, अब इंडिया चलो, अब लैटिन अमेरिका, अब अफ्रीका चलो, यहां चलो। सस्ते मजदूर कहां मिलेंगे, सस्ता रिसोर्सेज, फ्री का रिसोर्स कहां मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा कर लो। नए नए एरियाज में जाता है। और भारत का कैपिटलिस्ट, अब वो भारत का नहीं है, अब वो उसमें किस किस की कैपिटल है उसके पीछे पता नहीं आपको। वो आदिवासी इलाके में रुकेगा नहीं। कैपिटलिस्ट भारत की एग्रीकल्चर पर कब्जा करेगा, और ये कब्जा बंदूक के दम पर होगा। जो सीआरपीएफ आज आपको छत्तीसगढ़ और झारखंड के गांव-गांव में दिख रही है, वो सीआरपीएफ भारत के गांव-गांव में बैठेगी कुछ ही सालों की बात है। और जिस तरीके से वहां आदिवासियों की जिंदगी तबाह हुई है, वो जिंदगी आपकी भी तबाह होने वाली है, और हो रही है, हो रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपका रोजगार छीन लिया गया। इस समय भारत का अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट पीक पर है आजादी के बाद, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। आपके बैंक खाली कर दिए गए हैं। आपके खाली नेचुरल रिसोर्सेज नहीं लूटे जाएंगे। छोटे व्यापारी बर्बाद कर दिए गए। छोटा व्यापारी थोड़े ही दिन में का मेहमान है। छोटा व्यापारी खत्म, आपका एम्प्लॉयमेंट खत्म, आपके रिसोर्सेज खत्म, बैंकों में रखा हुआ गरीबों का सारा जमा पूंजी लेकर के भाग जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और समाज ये सब देख ना सके, समझ ना सके, इसलिए उसकी एनालिटिकल कैपेसिटी, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म करने का पूरा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, और समाज को टुकड़ों टुकड़ों में फ्रेगमेंट किया जा रहा है। फ्रेगमेंट कि आदमी को औरत के खिलाफ खड़ा करो, नफरत पैदा करो इनके बीच में, तो आप देखेंगे कि पूरे प्रोजेक्ट के तहत सुबह सुबह व्हाट्सएप मैसेज आएगा, इक्वेलिटी की बात करने वाली औरतें हमारे संस्कृति की दुश्मन है, ये हमारी धर्म की दुश्मन है, ये हमारी परंपरा को नष्ट करना चाहती हैं, तो मर्द को औरत के खिलाफ खड़ा करो, औरत भी दुश्मन है,
हमारे घर की औरत ही दुश्मन है। जो इक्वालिटी की बात करे, जुबान खोले, वो औरत दुश्मन, खराब औरत। हिंदू को मुसलमान के खिलाफ खड़ा करो, जाति को जाति के खिलाफ खड़ा करो, मजदूरों को कहो ये आलसी, कामचोर, निठल्ले लोग हैं, ये तो हड़तालें करते रहते हैं। किसान को कहो कि ये तो खालिस्तानी है। यहां तक कि हमने समाज को इतना जहरीला बना दिया है कि हमारे अपने बच्चों ने जब कहा हमारी फीस कम कर दो, सस्ती शिक्षा चाहिए, इस समाज ने यूनिवर्सिटीज में घुस के अपने बच्चों के सिर फोड़ दिए। जेएनयू में हमने अपने बच्चों के सिर फोड़े। क्यों? सस्ती शिक्षा की मांग कर रहे हैं। ये पैरासाइट्स हैं, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे पे मजे कर रहे हैं, ये हरामखोर लोग हैं। इसी समाज ने, यानी हमारे समाज को इतना बांट दिया है एक दूसरे से नफरत करने में। अब हम एक दूसरे से नफरत करने वाली एक मॉब में कन्वर्ट हो चुके हैं। वी हैव लॉस्ट अवर एनालिटिकल थिंकिंग और रैशनल, और सब खत्म हो गया हमारा। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है हमारे साथ। हमारे बैंक कैसे बर्बाद हो रहे हैं, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रहा है, हम रीजन ही नहीं समझ पा रहे। एंड व्हाट इज हैपनिंग इज नॉट डिवाइडेड। आपको लगता है आदिवासी के साथ जो हो रहा है वो कुछ दूसरे लोग कर रहे हैं, हमारे साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम है वो कुछ और लोग हैं। जैसे मैंने बताया, नेचर बटा हुआ नहीं है, यू एंड नेचर इज वन। इसी तरीके से भारत का सुप्रीम कोर्ट दो नहीं है कि आदिवासी के साथ अन्याय करेगा, आपके साथ न्याय कर देगा, बंगाल के लोगों को न्याय दे देगा। ऐसा नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी दो नहीं है कि डेमोक्रेसी आदिवासी के लिए खत्म होगी, आपके लिए बची रहेगी। ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म आदिवासी को बर्बाद करेगा, आपको बहुत आबाद कर देगा। द डेंजर इज वन, अटैक इज वन, फाइट भी एक ही है। इसलिए आदिवासी जो लड़ रहा है वो आपकी भी लड़ाई है। वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ रहा है, वो सिस्टम को बचाने के लिए लड़ रहा है, वो ह्यूमैनिटी को, नेचर को, जिन चीजों को बचाने के लिए लड़ रहा है वो आपसे जुड़ी हुई है। आप ही हैं वो। आप जो डिवीजन, एक इमेजिनरी डिवीजन बनाकर बैठे हैं कि आदिवासी अलग है, आप अलग है, उसकी प्रॉब्लम अलग है, आपकी प्रॉब्लम अलग है, उसकी डेमोक्रेसी अलग है, उसका सुप्रीम कोर्ट अलग है। ये इल्यूजन है आपका। द फाइट इज वन, द अटैक इज वन, द स्ट्रगल इज वन, नेचर इज वन, वी ऑल आर। तो यही मुझे कहना था, और अगर कुछ सवाल हो तो हम वो ले सकते हैं। आपने मुझे मौका दिया है, मेरी बात शांति से सुनी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Shanmukha Kumar, for your engaging speech. Any questions? So we'll now be receiving questions to the speaker. Please raise your hand for questions. Have I left everybody speechless? hello. As academicians, since this is an academic institute, there are teachers, students here. जैसे कि आपके पिताजी ने बोला कि गांव में जाना चाहिए और गांव का आदमी को समझना चाहिए. What do you suggest as academicians? What should we do? What should the students do? What should the scholars do? What should the teachers do right now in this one and only struggle? What do you think? गांव में जाना तो अभी भी जरूरी है, और लेकिन जो शहर के मोहल्ले हैं उनमें भी जाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग अपने ये जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं इनसे बाहर तो जरूर निकलें, सोसाइटी में जाएं, और सोसाइटी में जहां भी जनता है, जनता के बीच में जो भी इश्यूज हैं उनको समझना और उनके उसमें जो ज़रूरी इंटरवेंशन है वो करना, ये तो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल है, आपके अपने लिए भी, अपनी पढ़ाई के लिए भी हेल्पफुल है। वो तो शायद आपके करिकुलम का एक हिस्सा ही होता है, लेकिन उसमें भी लोग बेईमानी, चीटिंग कर देते हैं।
और जाते नहीं है, करते नहीं है, लेकिन वो करना चाहिए, गांव में जाना चाहिए और आपको मज़ा आएगा उसमें। बहुत सारे देशों में तो प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स को गांव में जाकर रहना और काम करना ज़रूरी होता है और उन देशों की हालत इम्प्रूव हुई है ऐसा करने से। भारत में गांव में जाना एक बैकवर्डनेस समझा जाता है, वैसा हमको नहीं समझना चाहिए। आज भी गांव में जाना बहुत ज़रूरी है और जिस तरीके से गांव को इस समय कॉरपोरेट टारगेट कर रहे हैं, उस समय किसी भी एक्टिविस्ट का गांव में जाना जिस तरह से डेंजरस बना दिया गया है कि गांव में जाते ही पुलिस आ जाएगी कि तुम यहाँ पर राइट्स के बारे में बता रहे हो, तुम इनका पॉलिटिकल एजुकेशन कर रहे हो, तुम कौन हो, क्या हो। उस माहौल में तो अगर जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स गांव में जाएंगे तो गांव वालों को उससे मदद होगी और उनको पुलिस भी परेशान नहीं करेगी जैसा वो यंग एक्टिविस्ट को करती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। 2009 में शायद ना PIL फाइल किए, अब जब रिट पिटीशन था वो। अच्छा, मतलब उस समय का सुप्रीम कोर्ट का जो रिस्पांस था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो रिस्पांस आपने देखा, मतलब आप ये जो प्रोसेस बोल रहे हैं कि ये पूरा पोस्ट लिबरलाइजेशन जो लूट होने का, मतलब इसका जो प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ बहुत सारे चीज हो रहा था आदिवासी इलाका में, इसके साथ वो सुप्रीम कोर्ट का रिस्पांस, ये दोनों को अगर एक साथ देखूं और आज का हालत में सुप्रीम कोर्ट का रिस्पांस, ये इतना बदल कैसे गया? मतलब उस समय भी तो मतलब बाकी और हालत भी तो बदल चुका था। हाँ, लेकिन ये खाली हम सुप्रीम कोर्ट का हालत ही नहीं देख रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हालत और ज़्यादा डिजेनरेट हुआ है। इस वक्त तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सिद्दीक कप्पन, जो खाली हाथरस में एक दलित लड़की के बलात्कार वाला स्टोरी को कवर करने जा रहे हैं, उनको रास्ते में से पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और सिद्दीक कप्पन आज तक रिहा नहीं हुआ। उनको जमानत देने के बावजूद ईडी ने उनकी रिहाई पर रोक लगा रखी है और वो आज तक रिहा नहीं हुए। जबकि अर्नब गोस्वामी ने के वजह से 2 लोगों ने सुसाइड किया। अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में उन्होंने लिखा कि हम इसकी वजह से, इसने हमारा पेमेंट नहीं दिया इसलिए हम सुसाइड कर रहे हैं। उसको 1 हफ्ते में जमानत दे दी। और जिस तरीके से तीस्ता सीतलवाड़ का जाकिया जाफरी केस में कोई लेना देना नहीं था, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कमेंट कर रहा है एक्टिविस्ट के खिलाफ, और अगले दिन जाकर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, फॉर नथिंग। तो ये एक खतरनाक हालत तो है ही, लेकिन खाली सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है। इस समय हम चुनाव आयोग की हालत देख रहे हैं, NHRC की हालत देख रहे हैं, दूसरे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक्टिविस्ट को जेलों में डाला गया है और वो सब बहुत सीनियर लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको जमानत नहीं दी जा रही है, जेलों में हैं, वो मौत हो जा रही है उनकी जेलों में। और ये सब वो लोग हैं जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, जिन्होंने सारी जिंदगी भारत के लोगों की भलाई के लिए काम किया, वो जेलों में पड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रहा है। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग और बहुत चिंताजनक हालत है। और ऑफ कोर्स कि कैपिटलिज्म का जो ये नया दौर है, उसका बहुत बड़ा असर इन सारे इंस्टीट्यूशंस पर पड़ा है, पॉलिटिक्स पर भी पड़ा है और इन इंस्टीट्यूशंस के डिजनरेशन के लिए भी ये जिम्मेदार है। I have a question. Actually, Do you think is it possible to defeat these fascist force in politics, or only can strong mass movement by the students, by the peasants, by the tribals is the only necessary path to defeat this fascist force? देखिए, अभी डिफीट करने का एक पक्का फॉर्मूला किसी के पास है नहीं। हम सब ट्राई कर रहे हैं, हम सब छोटे छोटे एक्शंस के द्वारा, छोटी छोटी फाइट्स के द्वारा इनको जगह जगह हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल डिफीट उनकी हो जाए, ओवरऑल जो विक्ट्री है वो जनता की हो जाए, वो वाला फॉर्मूला और वैसी लड़ाई अभी हुई नहीं है। लेकिन जिस तरफ
समाज को ले जाया जा रहा है, पूरी की पूरी इकोनॉमी को ले जाया जा रहा है, पूरी की पूरी सोसाइटी को और पॉलिटिक्स को जिस तरफ ले जाया जा रहा है, जहां टोटल डिस्ट्रक्शन है, मतलब वो आपके समाज को इतना डिस्ट्रक्टिव बना देंगे कि आपके बच्चों के जिंदा रहने लायक ये समाज नहीं बचेगा। न सिर्फ उसका रोजगार खत्म हो जाएगा, पर्यावरण का नाश हो जाएगा, बल्कि जो सोशल फैब्रिक है, लव रिलेशंस, सोशल रिलेशंस, वो सब इतने पॉइजनस हो जाएंगे कि आपका बच्चा सांस नहीं ले सकेगा। वैसी हालत में क्या करेंगे लोग? उसको बदलने की कोशिश करेंगे ना। अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी हम जिंदा हैं, हमारा नौकरी बचा हुआ है, हमारा जिंदगी बचा हुआ है, अभी हम ठीक हैं, अभी लड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन एक ऐसी स्टेज जरूर आएगी जब आपके लिए कुछ भी बचाने को नहीं बचेगा, आपके अपने एग्जिस्टेंस पर खतरा आ जाएगा, तब तो आप जरूर उसको बदलने के लिए कोशिश करेंगे। और उसी तरफ पूरी की पूरी हालात जा रही है। अभी किसान अलग लड़ रहा है, आदिवासी अलग लड़ रहा है, मजदूर अलग लड़ रहा है, पढ़े लिखे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों की तो अपनी कोई लड़ाई है नहीं, रोजगार के लिए है, वो भी कोई बहुत बड़ा आंदोलन तो चल नहीं रहा है। तो मिलकर के लड़ने की बात है, वो एक हम लोग कल्पना करते हैं कि सब लोग मिलकर लड़ने लगेंगे, लेकिन देखते हैं वो कब होगा। Yeah, it's just a follow-up. So, do you think the most important thing for all political parties to first to unite and then defeat this current force and then to like solve the other problems, despite all the differences in the political parties in the opposition? Do you think the first thing we should do to try to unite and just gather all our forces together? देखिए, इस वक्त की जो पॉलिटिक्स की हालत है वो बहुत ही निराशाजनक है जी। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज का जो इकोनॉमिक जो पॉलिसी है या इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है वो सेम है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, यहाँ तक कि चाहे वो सीपीएम रही हो या दूसरी पार्टीज रही हो, उन सब की इकोनॉमिक पॉलिसी सेम है। आप देख रहे हैं इस समय भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कोई भी पॉलिटिकल डिबेट खड़ा नहीं कर रहे हैं, ना कास्ट पर, ना कम्युनलिज्म पर, ना इकोनॉमी पर। क्यों? क्योंकि डिफरेंस है ही नहीं, डिबेट है ही नहीं। तो जब आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी सेम है और उसी इकोनॉमिक पॉलिसी में से आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी निकलेगी, उसी में से आपकी एजुकेशन पॉलिसी निकलेगी, उसी में से आपका डॉक्ट्रिन ऑफ ओनरशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज निकलेगा, उसी में से आपकी गवर्नेंस निकलेगी। वो तो फर्क है नहीं। तो आप पॉलिटिकल चेंज का क्या मतलब है? पॉलिटिकल चेंज का मतलब क्या रूलिंग पार्टी का नाम चेंज हो जाना हम पॉलिटिकल चेंज मानेंगे? पॉलिटिकल पार्टी बदल जाए, बीजेपी चली जाए, कांग्रेस आ जाए, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी वही रहे, तो जो किसानों की लूट है वो वैसी रहेगी, आदिवासी के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन वैसा ही रहेगा। और हम देख भी रहे वैसा है। छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस है, सर्वजुड़ के समय बीजेपी थी, लेकिन कुछ भी नहीं बदल रहा है। पॉलिटिकल चेंज का मतलब है आइडियोलॉजिकली डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देश में आए, जिसका इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सोच अलग है, उसमें से फिर चीजें बदलेंगी। तो पॉलिटिकल चेंज के लिए पहले हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑल्टरनेटिव, वो तो एक अपने भी डिस्कशन शुरू करें, डिबेट शुरू करें कि ये वाला पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये नहीं चलेगा। और क्या हमारा यूथ उस डिबेट में इन्वॉल्व है? क्या वैसी कोई डिबेट समाज में चल रही है? अगर वो डिबेट नहीं है तो चेंज पॉसिबल नहीं है। हमें बेसिक क्वेश्चंस खड़े करने पड़ेंगे अबाउट दिस इकोनॉमी, हमारा पूरा वर्ल्ड व्यू, लेवल ऑफ कंजम्पशन, उससे आपका नेचर, एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट्स, इक्वल सोसाइटी,
वो सब निकलेगा। इस वाले इकोनॉमिक सिस्टम में ये सब पॉसिबल नहीं है। आप सोचे कैपिटलिज्म भी रहेगा और एनवायरनमेंट भी बच जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। गुड इवनिंग सर। आपने जैसे बताया कि आपके पिताजी काफी हम्बल बैकग्राउंड से थे और उनके पास जमीन नहीं थी या जो भी चीजें हैं, तो वो जो नहीं होना आपके लिए कुछ आसान रहा आपकी ज़िंदगी में? क्योंकि अभी भी आपके पास सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का फाइन किया और आपने बोले कि मेरे पास तो नहीं है, तो वो नहीं होना कहीं ना कहीं आपको फ्री किया, मुझे ऐसा लगता है। और हम जैसे लोग जो इस तरह के इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो इस समस्या तो बहुत कॉमन है, हर दिन न्यूज़पेपर या कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता ही है, लेकिन एक डर होता है खोने का। हमें लगता है कि कहीं आसपास हमारे बैठे हुए प्रोफेसर ही हम पर जज ना करे, हमारे पेरेंट्स ही जज ना करें, क्योंकि वो डर होता है कि जो आज चीज़ हमें मिलता है, चाहे वो फेलोशिप के रूप में हो, चाहे वो सिंसियरिटी के नाम पर जो एक आपको एक रेस्पेक्ट या कदर दिया जाता है, तो मेरे को नहीं पता कि कैपिटलिज्म या पॉलिटिक्स का कितना बड़ा असर होता है इस ग्रुप में, क्योंकि हमें वो कल्चर नहीं मिलता है, हमें वो सपोर्ट सिस्टम ना घर से मिल पाता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे इंस्टीट्यूट बोलता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आसपास से सोसाइटी से, आसपास के लोगों से, या जो मेरे पास थोड़ा बहुत है उसका खोने का डर कहीं ना कहीं एक आसपास भी हमें घूमता रहता है। इसलिए लगता है कि पता नहीं हम कल यहाँ से निकल कर कुछ इस तरह के किसी चीज़ में भाग लेंगे तो वो चीज़ें हमें सपोर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो आपको इस चीज़ को लेकर क्या करना है कि नहीं होना कहीं ना कहीं एक फ्रीडमनेस या वो चीज़ आपके केस में लाया? ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि आपने वहां से स्टार्ट किया था। बिल्कुल, मैंने तो लिखा भी है उस पर कि मुझे फकीरी ने ताकत दी, मुझे फकीरी की ताकत समझ में आई कि एक फकीर की कितनी ताकत हो सकती है। उसको कुछ भी खोने का डर नहीं है, वो पूरी तरह से निर्भय हो सकता है। तो वो जो निडरता है, वो जो जिसको नॉन बिलोंगिंगनेस कहते हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मेरी नौकरी, मेरा कोई कैरियर, मेरा कोई मेरी इज्जत, मेरा पैसा, मकान, जमीन, खेत, आप मेरा कुछ भी नहीं छीन सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये लीजिए, मैं खड़ा हूं बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड। तो आप मुझे बिगाड़ लीजिए, जो बिगाड़ना है, आप जेल में डाल दीजिए, मार दीजिए, लेकिन मैं आपसे डरूंगा नहीं, मैं गलत के सामने झुकूंगा नहीं। तो ये बात सच है, आप जो कह रहे हैं कि हमारे पास जो होता है उसको खो जाने का डर होता है। और हमारे कई दोस्त मजाक में कहते हैं कि इस बार सरकार ने एक गलत आदमी चुन लिया, तुम्हारे साथ नहीं करना था ऐसा। टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में आपने नया डेफिनेशन दिया, तो अर्बन नक्सल के बारे में अब तक कोई फैसला है क्या? देखिए, ये तो एक बहुत खतरनाक चीज हो रही है कि कोई, अब ये कहा जा रहा है कि जो लिखने वाले लोग हैं, कलम वाले लोग हैं, वो नक्सल हैं। मतलब इस देश में पढ़े लिखे लोगों को अपराधी बनाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। और कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं वो भी नक्सल है। हद हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना अपराध है, पढ़ा लिखा होना अपराध है, रीजन की बात करना अपराध है। तो ये जो और कहा गया कि ये लोग भोले भाले दिखते हैं, लेकिन पुलिस को सही और गलत में फैसला करना आना चाहिए। मीन्स व्हाट? पुलिस का काम ये थोड़ी है कि वो सही गलत का फैसला करेगी, यू आर राइट एंड यू आर रॉन्ग। ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है आईपीसी की कौन सी धारा का उल्लंघन किया, आपने कौन सा कानून तोड़ा, आपके ऊपर वो चार्ज है, खत्म बात। अब वो ये थोड़ी कहेगा कि ओके यू सपोर्ट सावरकर, यू आर गुड, यू सपोर्ट भगत सिंह, यू आर बैड। गुड और बैड का फैसला करना पॉलिटिकल पार्टी का काम है, ये पुलिस का काम थोड़ी है। बट हमारा
देश का प्रीमियर कह रहा है कि पुलिस, अपने भाषण में कह रहा है होम मिनिस्टर्स के कॉन्क्लेव में, कि पुलिस को सही गलत का फैसला करना आना चाहिए। ये संविधान की बात करने वाले, ये पढ़े लिखे कलम वाले नक्सल, ये बड़े भोले भाले दिखते हैं, लेकिन आपको सही गलत का फैसला करना आना चाहिए। कल ही मेरे साथ एक बहुत बंगाल के टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर बैठे थे, सर्विंग पुलिस ऑफिसर। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब ये बात ठीक लगी आपको? बोले बिल्कुल गलत बात है, हमारा काम ये है ही नहीं, हमारा काम तो आईपीसी का फॉलो करना है, जो आईपीसी को तोड़ेगा हम उसके ऊपर केस करेंगे, हमारा काम आइडियोलॉजी के आधार पर किसी को जज करने का है ही नहीं। बट हमारा देश का प्रधान क्या है कि आप इनके ऊपर इनको क्रिमिनलाइज करिए? किस वजह से? ये लिखते हैं, इनके पास कलम है, ये संविधान की बात करते हैं। हिमांशु जी को बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। आज ये जो मौका मिला हम लोगों को, हम आरएस फोरम से बहुत सारे प्रोग्राम पहले अरेंज किए थे, लेकिन आज का जो डिस्कशन हुआ मुझे लगा कि ये थोड़ा बाकी पुराना जो डिस्कशन हुआ था, हम लोगों का डिस्कशन हुआ था, बहुत सारे अलग अलग तरह के इंटरेक्टिव प्रोग्राम भी हुआ था, कल्चरल प्रोग्राम हुआ था, इससे थोड़ा अलग है। मतलब अभी हम भी इतना इनका हिमांशु जी का बात पहली बार इतना डिटेल में सुन रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे नया चीज उन्होंने बताया जो हो सकता है कि मुझे भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बहुत सारे लोगों को भी है, लेकिन ये कुछ चीज ऐसा इधर उठ के आया जो मतलब काफी मतलब उसका बोल्डनेस भी था। ये थोड़ा हम लोग ये बोल्डनेस का जरूरत भी है अभी इस टाइम पे, मुझे ये भी लगता है। तो भारत, मुझे लगता है कि भारत ऐसा एक देश है जिसमें बहुत सारा का विचारधारा है, जो विचारधारा का लोग जो अलग अलग सोच से कुछ करने का, कुछ बदल लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आज ये जो डिस्कशन हुआ, ये मुझे सबको ही बहुत हमारे लिए इनरिचिंग हुआ है। ये रिसर्च स्कॉलर्स फोरम की तरफ से हम दोबारा शुक्रिया जनाता हूँ आपको, हिमांशु जी को। और आज का इवेंट आज इधर ही हम खत्म करते हैं। अच्छा, বাইরে চায়ের ব্যবস্থা আছে, আর হিন্দিতে বলতে পারছি না, বাইরে চায়ের ব্যবস্থা আছে, চা সবাই নিয়ে নেবেন এবং এখানে আমরা শেষ করছি আজকে।